Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture we will discuss the solid fertilizer applications. So in this lecture we will discuss solid fertilizer application methods. आज के लेक्चर में हम सॉलिड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड्स के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा गया था कि हम फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करते हैं, उसके डिफरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरह से हमको अप्लाई किया जाना चाहिए उसके बारे में देखा। आज हम पर्टिकुलरली सॉलिड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। So let us start today's lecture. So today is our topic solid fertilizer application. So it may be done by different methods, by broadcasting, second is by placement, third is by band placement and fourth is pellet. So main जो application है वो चार तरह का होता है. So broadcasting further divided into basal application and crop dressing. Placement is further divided into close hole placement, deep placement and localized placement. Band placement in two kinds, hill placement and row placement. So let us see what are different kinds of this and discuss in detail. So first is broadcasting. So broadcasting is just scattering of these fertilizers randomly with hand, differ from the banding in that total cropland area is covered with fertilizer. ये banding से different होता है, जो banding हम coming slides में देखेंगे. So it is mostly and broadly used in all over the country. So broadcasting है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ये ब्रॉडकास्टिंग में सिंपली इसको हम अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड स्कैटरिंग. सो प्लेसमेंट, नेक्स्ट इज प्लेसमेंट. इट रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर इन सॉइल एट ए स्पेसिफिक प्लेस विद और विदाउट रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द सीड. सो इसमें हम जो प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट हम फर्टिलाइजर का सॉइल में प्लेसमेंट करते हैं. हम इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं लेते कि हमारी जो क्रॉप है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, बस इसका हम प्लेसमेंट करते हैं डायरेक्ट. Placement of fertilizer is normally recommended when the quantity of the fertilizer applied is small, development of the root system is poor, soil have a low level of fertility and to apply phosphatic and potassic fertilizer. So इसका यूज कब करते हैं? जब हमारे पास फर्टिलाइजर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करना हो और उसके रूट सिस्टम पुअर हो और सॉइल में जो फर्टिलिटी लेवल हो वो बहुत ही कम हो, हमको मतलब कि पूरी सॉइल में इसको मिक्स करना है, तो हम प्लेसमेंट यूज करते हैं. सो क्लोज होल प्लेसमेंट. So soil placement is in this method fertilizer is applied or placed at the bottom of the flow furrow in a continuous band during the process of plowing. So इसमें हम क्या करते हैं, प्लो के पीछे जो फरो होता है वहाँ पे उसको ओपनिंग कर देते हैं जिससे कि वो पूरे में अप्लाई कर दिया जाता है. And then deep placement. So deep placement it is a placement of the ammonical nitrogenous fertilizer in the reduction zone of the soil, particularly in paddy fields. तो जो अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको हम रिडक्शन जोन में यूज करते हैं. क्योंकि रिडक्शन जोन में इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनका जो लीचिंग होता है वो बहुत ही कम होता है. जो हमारा नाइट्रेट्स होते हैं उसको हम ऑक्सीडाइज जोन में डालते हैं क्योंकि उनकी जो लीचिंग ज़्यादा होती है, तो इसको हम अमोनिकल को इसलिए रिड्यूस जोन में डालते हैं, हम लोएस्ट लेवल्स में डालते हैं पैडी में. सो वेयर अमोनिकल नाइट्रोजन रिमेन्स अवेलेबल टू द क्रॉप्स. सो ये अवेलेबल रहता है क्रॉप्स के लिए. This method ensures better distribution of fertilizer in the root zone and soil and prevent the loss of nutrients by runoff. So ये इंश्योर करता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल रहें और रनऑफ के थ्रू उसका जो लॉस हो बहुत मिनिमम हो. So localized placement. So localized placement means it refers to the application of fertilizer into the soil close to the seed or plant in order to supply the nutrients in adequate amount to the roots of the growing plants. So it refers to the fertilizer into soil and close to the seed and plant in order to supply the nutrient. So इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही सीड के क्लोज होता है, पास में किया जाता है जिससे कि उनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो सके ग्रोइंग प्लांट्स को. द कॉमन मेथड टू प्लेस द फर्टिलाइजर क्लोज टू द सीड और प्लांट एज इट फॉलोज. सो नेक्स्ट इज ड्रिलिंग. इन दिस मेथड द फर्टिलाइजर इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग बाय मीन्स ऑफ सीड कम फर्टिलाइजर. सो ड्रिलिंग में सीड कम फर्टिलाइजर की हेल्प से यूज किया जाता है. मीन्स एक सीड बॉक्स में सीड होता है और जो फर्टिलाइजर बॉक्स में फर्टिलाइजर अप्लाई करके वो साइमल्टेनियसली डाल दिए जाते हैं. दिस प्लेस फर्टिलाइजर एंड द सीड इन द सेम रो बट एट डिफरेंट डेप्थ. सो इसकी डिफरेंट डेप्थ रखी जाती है लेकिन सेम रो में अप्लाई किया जाता है. ऑल्दो दिस मेथड हैज बीन फाउंड सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर इन सीरियल क्रॉप्स बट समटाइम्स जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड यंग प्लांट्स मे गेट डैमेज ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोलेबल स्टार्च. सो इसका एप्लीकेशन बेस्ट मेथड है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में अवेलेबल होने के कारण गिर जाने के कारण प्लांट्स में लॉस भी हो जाता है. देन साइड ड्रेसिंग. सो इट रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ द फर्टिलाइजर इन बिटवीन द रोज एंड अराउंड द प्लांट्स. द कॉमन मेथड इज साइड ड्रेसिंग आर
Placement of nitrogen fertilizer by hand in between the rows crops like maize, sugarcane, cotton to apply the additional doses of the nitrogen to the growing crops. So इसको साइड में है हम अप्लाई कर देते हैं रो क्रॉप्स में, जो कि साइड ड्रेसिंग बोला जाता है. प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अराउंड द ट्रीज लाइक मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, पपाया एटसेट्रा. या फिर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, ट्रीज हैं, उनके जो अराउंड है उनके रिंग्स में हम अप्लाई करते हैं इनको. सो साइड ड्रेसिंग type of, that is a type of bending. So bending means application of the fertilizer in bands. So fertilizer is placed near to the soil surface to the side of the plant, usually used when the applying nitrogen, potassium as a second application after the plant emergence. So तब यूज किया जाता है जब प्लांट उग जाता है, एमर्ज हो जाता है, और मोस्टली नाइट्रोजन और पोटेशियम के केस में यूज किया जाता है. रिड्यूस द लॉस ऑफ बाय लीचिंग. सो ये लीचिंग के थ्रू लॉस को रिड्यूस करता है. यूज्ड ड्यूरिंग द फेवरेबल सॉइल मॉइस्चर कंडीशन. जब सॉइल मॉइस्चर कंडीशन फेवरेबल हो तभी इनका यूज किया जाता है. सो नाउ बेंडिंग. सो बेंडिंग इज फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड नियर टू द सीड. सो ये बैंड्स में सीड्स के पास में यूज किया जाता है. यूजुअली यूज्ड ऑन द रो क्रॉप्स. ये रो क्रॉप्स में यूज किया जाता है. एज ए बैंड्स फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड 2 इंच बिलो एंड टू द साइड ऑफ द क्रॉप. सो ये 2 इंच साइड में या 2 इंच बिलो यूज किया था. जैसे कि फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंच का गैप दिया गया है और यहाँ पे 2 इंच का गैप दिया गया है और इसको अप्लाई किया जाता है. कीप इट फ्रॉम इंजुरिंग द सीडलिंग. सो ये 2 इंच का जो डिफरेंस है वो उसको इंजुरी से हेल्प करता है, इंजुरी से बचा के रखता है, नहीं तो इंजुर हो सकता है. सो नाउ इज टॉप ड्रेसिंग. सो टॉप ड्रेसिंग इज एप्लीकेशन इज सेकंड एप्लीकेशन टू द सॉइल सरफेस. ये सॉइल सरफेस से पे जो ऊपर से डाला जाता है. यूज मेनली ऑन स्मॉल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड ग्रासेस. तो ये स्मॉल ग्रेन्स, लेग्यूम्स से ग्रासेस में यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज बैंड प्लेसमेंट. इट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन बैंड्स. बैंड प्लेसमेंट इज 2 टाइप्स. 2 टाइप्स का कौन सा है बैंड का? हिल प्लेसमेंट. इट इज प्रैक्टिस्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन ऑर्चर्ड. ये ऑर्चर्ड में यूज किया जाता है. इन दिस मेथड फर्टिलाइजर्स आर प्लेस्ड क्लोज टू द प्लांट इन बैंड्स ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द प्लांट. दोनों तरफ यूज किया जाता है. The length and depth of the band varies with the nature of the crop. So crop के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है. इसकी जो डेप्थ है, लेंथ है, कितना अप्लाई. नेक्स्ट इज रो प्लेसमेंट. When the crops like sugarcane, potato, maize, cereals, etc. are sown close together in rows, the fertilizer is applied in continuous bands on one or both sides of the row, which is known as the row placement. So दोनों तरफ अप्लाई किया जाता है जो रो क्रॉप्स होती हैं, जैसे sugarcane, potato, maize, cereal crops, etc. Next is pellet application. It refers to the placement of the nitrogen fertilizer in the form of pellets 2.5 to 5 cm deep between the rows of the paddy crop. So paddy crop में भी यूज किया जाता है 2 to 5 cm deep जो pellets form में. Fertilizer is mixed with the soil in the ratio of 1 to 10 and the made small pellets of convenient size to deposit in the mud of the paddy field. So 1:10 रेशियो में इसको अप्लाई किया जाता है, मिक्स किया जाता है और इसको pellets बनाए जाते हैं और पैडी फील्ड में अप्लाई किया जाता है. When the fertilizer is placed, there is minimum contact between the soil and the fertilizer, and thus fixation of nutrient is generally reduced. So जो दोनों में contact होता है वो तो मिनिमम होता है. तो जो fertilizer fixation होता है वो कम reduce होता है. The weeds all over the field cannot be make use of the fertilizer. तो जब इस तरह से pellets form में करते हैं तो सब जो पूरे फील्ड में weeds भी अवेलेबल है वो इस सब का यूज नहीं कर पाते हैं. मीन्स वीड्स को न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते, ग्रोथ रुक जाती है. रेसिडुअल पर्पस रिस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर इज यूजुअली हायर. सो जो रेसिडुअल रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा रहता है रेसिडुअल फॉर्म में. यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर बाय द प्लांट इज हायर. लॉस ऑफ नाइट्रोजन बाय लीचिंग इज रिड्यूस. बीइंग इमोबाइल फॉस्फेट आर बेटर यूटिलाइज्ड व्हेन द प्लेस. सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि सॉलिड फर्टिलाइजर्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं सॉइल में, कौन से उसके डिफरेंट मेथड्स हैं. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. आने वाले लेक्चर में हम लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो अगर आपने हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे भी लाइक करें, आप उसे ज्वाइन करें. आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.com पर रजिस्टर कर सकते हैं और आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं. आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 8888236316 पर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.